हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ +1 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ। ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਓ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਰੀਆ, ਮਾਸ, length, area, velocity, acceleration, force, heat, temperature, current, magnetic field, electric field. These are all ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਿਆ, टाइम हो गया। अगर ऐसी मोटी मोटी चीज लगी थी, मास, लेंथ एंड टाइम। ना जिवें लेंथ ए दी लेंथ जिन्ने भी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है लेंथ। हुण लेंथ असीं भावें इधरों मेजर करिए ते भावें असीं लेंथ इत्थों मेजर करिए, भावें तुसीं इहनूं ए तो मेजर कर लो, भावें तुसीं इहनूं बी तो इधर नूं मेजर कर लो, भावें ए तो इधर नूं मेजर कर लो, जिधरों दी मर्जी इहनूं मेजर कर लो, रहना तो इन्हें 5 सेंटीमीटर ही। सो ये की आ गया 5 सेंटीमीटर की, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤੇ ए बी ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ए बी ਲਗਾਓ, ਉਹ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ बी ए ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ए बी ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ बी ए ਲਿਖ ਲਓ, ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ weight ਲੈ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड। इस तो इलावा तो और कुछ नहीं है ना ਇਹਦਾ। सो 6 किलोग्राम ਇਹਦਾ weight है, सिर्फ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड है। टाइम ले लो, टाइम टाइम कितना है 5 बजे, 5 PM, it is 5 PM। what is 5? it is magnitude। ये ना मैग्नीट्यूड है, और तो कुछ नहीं है ना। सो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। एरिया ले लो, एरिया है स्क्वायर द एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सिर्फ की है साढ़े को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सिर्फ की है साढ़े को
मैग्नीट्यूड। सो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्ना दा सिर्फ मैग्नीट्यूड होवे, कोई डायरेक्शन ना होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ scalar quantities ਕਹਿੰਦੇ। So all those quantities which have only magnitude, no direction, are scalar quantities. Length, mass, time, area, volume, etc. जिन्हों की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, उन्होंने वैल्यू ही है साढ़े को, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। उस तो बाद आ गया वैक्टर क्वांटिटीज की। वैक्टर क्वांटिटीज की वो क्वांटिटीज जिन्हों का मैग्नीट्यूड होवे ते डायरेक्शन भी होवे, उन्होंने असी वैक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, they are known as vector quantities। यदि सब तो अच्छी एग्जांपल है फोर्स, जिवें कोई ऑब्जेक्ट है साडे कोल, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ फोर्स लगाया F, ਇੱਥੇ फोर्स लगावांगे तो ऑब्जेक्ट ਇਹ ਜਿਹੜੀ ऑब्जेक्ट है ये इधर ਨੂੰ ही मूव करेगी। फोर्स जिस डायरेक्शन ਨੂੰ लगावांगे ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन ਨੂੰ ही मूव करेगी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गई। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन ਅਸੀਂ फोर्स लगा रहे हैं ਤੇ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन ਨੂੰ, ਤੇ ऑब्जेक्ट भी ਇਸੇ डायरेक्शन ਨੂੰ मूव करेगी। अगर ਅਸੀਂ फोर्स इस डायरेक्शन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ फोर्स इस डायरेक्शन ਨੂੰ लगा रहे ਹੁੰਦੇ, 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन ਨੂੰ लगा रहे ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ऑब्जेक्ट इधर ਨੂੰ मूव करती, नो, ऑब्जेक्ट ने तो इधर ਨੂੰ मूव करना in the direction of the force। ठीक है, सो इत्थे मैग्नीट्यूड ते मैटर करदा ही करदा है, डायरेक्शन भी मैटर करती है कि ਅਸੀਂ किस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स लगा रहे हैं। सपोज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ऑब्जेक्ट, इधरों दी फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, इधरों दी फोर्स लगा रहे हैं वो भी 2 न्यूटन, ते की ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन अपनी पोजीशन चेंज करेगी, नो, क्योंकि दोनों जगह तो जड़ा एक इधर नूं जड़ा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन तो, और जड़ा इस डायरेक्शन तो फोर्स लग रहा है वो इस बॉडी नूं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करन दे रहा, उसी दी उसी जगह ते, क्योंकि दोनों जगह तो बराबर फोर्स लग रहे हैं, वो एक दूसरे नूं कैंसल कर रहे हैं, जिहदे करके ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। सो डायरेक्शन हियर मैटर। अगर एक फोर्स इधरों दी लग रहा हुंदा ते दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन नूं लग रहा हुंदा ते इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इधर नूं होनी सी, इन्हें इधर नूं मूव करना सी, चेंज होनी सी। सो डायरेक्शन मैटर करती है। सो वो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हां दे विच उन्हां दा मैग्नीट्यूड भी वेरी करे ते उन्हां दे डायरेक्शन भी वेरी करे, दोनों होण, उन्हां नूं असीं वैक्टर क्वांटिटीज कहंदे हां। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, acceleration, etc. They are known as vector quantities। So physics ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ quantities ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ scalar quantities ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ vector quantities ਕਹਿੰਦੇ ਆ। scalar quantities ਉਹ quantities ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ magnitude ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ direction ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ vector quantities ਉਹ quantities ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ magnitude ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ डायरेक्शन भी होती है। Now after this we will come to types of vector। vector किन्ने तरह दे होंदे, सब तो पहला आंदा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड।
जिवें साडे कोल कोई वैक्टर है ए वैक्टर या एफ वैक्टर या बी वैक्टर, कोई भी आपां वैक्टर लिया, दिस इज अ वैक्टर। एक चीज़ इत्थे रह गई, वैक्टर नूं असीं एरो दे नाल डोनेट जिहड़ा है ना उहनूं डिनोट करीदा है। जिवें लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, असीं सिंपल एल लिखनी है। मास स्केलर क्वांटिटी है, असीं सिंपल मास लिखनी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी असीं सिंपल टी लिखनी है। जदों वैक्टर क्वांटिटीज होणगीਆਂ जिवें फोर्स, फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एरो लगा देंगे। वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एरो लगा देंगे। एक्सलरेशन एक वैक्टर क्वांटिटी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एरो लगा देंगे। सो फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एरो ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, they are known as the vector quantities। now types of vector ਦੇ ਵਿੱਚ modulus of vector, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ, this is the a vector, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। देयर आर टू थिंग्स इन द वैक्टर, मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन। वो वैक्टर जिहदा सिर्फ मैग्नीट्यूड दसना होवे ते ओहदे आप बाहर असीं बार लगा देंगे। ਇਹਦਾ मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर, ए वैक्टर ਉਹਦੇ साइड ते बार लगाता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर, या इनू कह दो मॉडुलस ऑफ वैक्टर। सो मॉडुलस ऑफ वैक्टर की दिंदा ओहदा मैग्नीट्यूड, दिस इज नोन एज मॉडुलस, दिस बार इज नोन एज मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है ओहदा मैग्नीट्यूड। जिवें वैक्टर है एफ वैक्टर सी, ਇਹਦਾ मॉडुलस की होएगा और वो कितना सी 2। सो मॉडुलस ऑफ वैक्टर किहदे बराबर है 2 न्यूटन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एफ किधे बराबर है 2 यूनिट। सो मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उस तो बाद आ गया यूनिट वेक्टर। ना यूनिट वेक्टर की है, वेक्टर साडे कोल दो चीज़ां ने, एक मैग्नीट्यूड ते दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नूं इसे दिता है मॉडुलस ने, ते वेक्टर विच जिहड़ी डायरेक्शन हुंदी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिट वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करीदा और ਉਹਨੂੰ किस तरह लिखीदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कैप डाल दी। कैप ਦਾ मतलब है ਉਹਦਾ ਹੀ डायरेक्शन, मॉडुलस ਦਾ मतलब है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्शन आ गई ए कैप, सो ए कैप दैट इज द डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन वैक्टर, ਇਹਦਾ मतलब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो गया। एक आ गया साडे कोल मैग्नीट्यूड, दूसरा आ गई साडे कोल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दैट इज वेक्टर। इट मीन्स डायरेक्शन किहदे बराबर होएगी, डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड दैट इज डायरेक्शन। सो जिहड़ी चीज़ सानू डायरेक्शन दे रही है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना होएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब ए वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन है, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड किहदे बराबर है 1 ਦੇ बराबर। ए मॉडुलस ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दी डायरेक्शन किहदे बराबर है नो डायरेक्शन, ਇੱਥੇ डायरेक्शन नहीं है, ਇੱਥੇ मैग्नीट्यूड नहीं है। सो जिथे डायरेक्शन जिवें डायरेक्शन है, सो ਇੱਥੇ मैग्नीट्यूड किहदे बराबर होएगा 1। सो अ वेक्टर which has one magnitude that is known as unit vector। इस करके यूनिट वेक्टर लगाया है। यूनिट वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिहदा मैग्नीट्यूड एक होवे तो वो सानू सिर्फ की दे रहे हैं डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने असी यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर सानू की देंदा डायरेक्शन ते मॉडुलस ऑफ वेक्टर सानू की देंदा मैग्नीट्यूड। सो ये वेक्टर किहदे बराबर है मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन का प्रोडक्ट है, ते डायरेक्शन किहदे बराबर आ गई दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। सो इन्हां दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके नाल करना है, इन्हां दी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बोथ द थिंग्स। इक्वल वेक्टर, कोई दो वेक्टर्स जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी बराबर होवे
डायरेक्शन भी सेम हो उन्होंने असीं इक्वल वैक्टर कहते हैं। सो कोई दो वैक्टर जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी सेम है ते डायरेक्शन भी सेम है, दे आर नोन एज द इक्वल वैक्टर। नेगेटिव वैक्टर वो वैक्टर जिन्हां दा मैग्नीट्यूड तो सेम है ते डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज नोन एज नेगेटिव वैक्टर। ए किहदे बराबर है, बी दे बराबर, ते बी कितना -c, सो दैट इज नोन एज द नेगेटिव वैक्टर जिन्हां दा मैग्नीट्यूड ते सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। को इनिशियल वैक्टर वो दो वैक्टर जिन्हां दा इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम जगह तो स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर नोन एज को इनिशियल वैक्टर्स जिन्हां दा इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम। को प्लेनर वैक्टर एक प्लेन दे विच जिन्ने वैक्टर्स होंगे A, B, C, D, so they are co-planar vector। एक plane दे विच जिन्ने vectors है they are co-planar vector। Next localized vector, so localized vector जिन्ना दा initial point fix है, A fix है, जिधरों दी मर्जी मूव कर ले, this point O is fixed, so they are known as the localized vector। non-localized vector जिन्ना दा initial point fix नहीं है, they are known as non-localized vector। So again we come to types of vector। I will again discuss with you। modulus of vector मतलब होता magnitude, unit vector मतलब vector दी direction, that is the unit vector। vector किधे बराबर होता है, magnitude ते direction दा product, ते मैग्नीट्यूड कितने बराबर हो गया, वेक्टर ओवर सॉरी डायरेक्शन कितने बराबर होगी, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर वो दो वेक्टर जिन्हां दी डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड सेम हो, दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन ऑपोजिट है, दे आर नेगेटिव वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जिन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट इक्को होवे, वेक्टर दा स्टार्टिंग पॉइंट इक्को पॉइंट तो स्टार्ट कर रहे हो, दैट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर एक प्लेन दे विच जिन्ने भी वेक्टर्स होंगे दे आर ऑल को प्लेनर वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर जिन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होवे, that are known as initial point fixed होवे, that are known as localized vector। जिन्हां दा initial point fixed ना होवे, they are known as non localized vector। ते एक और आंदा है zero vector। zero vector वो है जिहदा मैग्नीट्यूड zero, zero magnitude, they are known as the zero vector। so these are the types of vector। ते next lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ what is position vector, displacement vector, and how we multiply a scalar with a vector। एक scalar ਨੂੰ ਅਸੀਂ vector ਦੇ ਨਾਲ किस तरीके ਨਾਲ multiply ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that we will discuss in the next lecture।